Good evening, ma'am. Good evening, good evening. How are you? Nice to see I'm good. you. I'm good. Hi, Akansha. Thank you. Good evening. I'm good. How are you? I'm good. Nice to see you. He's my Nice student, to see Umar, you. Dr. Umar Mushir. Rekha Kumar, ma'am, was my biology teacher in St. Francis College. Oh, okay. That's Exactly. great. So So what currently, I'm sir, doing you are today as like, a doctor is just because she taught me the science of biology. That's only that I became a doctor now. absolutely. The foundations are laid by the school teachers, definitely, Hmm. Exactly. for sure. So, a very good evening, dear members and uh, our guest of today's webinar, and also the viewers. We are going to discuss on certain issues which is of today's big problem, that is of mental health. As per physical health, mental health is also very important for your well-being. So on this topic we are going to discuss. We have speakers from different areas. We'll discuss. I'll tell about them. Otherwise, Lucknow is a social awareness Facebook group. There are about 3.5 thousand members globally, and we are working on awareness, the mainly the heritage and culture of Lucknow. And myself, I'm Rekha Kumar, an educationist and social activist. So I welcome our guest of today's webinar. The guest speakers are Dr. Umar Mushir, he's a psychiatrist, and Dr. Akansha Srivastava, she is a psychologist. So our founder, Ifat Khan, she's not present with us because she these days plays in Canada, and there's a time duration, the gap is so much, must be 3 o'clock in the morning at present. So, but she has sent her wishes, good wishes for a successful webinar to help her members to lead a healthy, physically and mentally healthy life. So let me tell in brief about my first speaker, Umar. The best part is Umar Hello, is from ma'am. St. Francis. He was my student. I feel very proud. At least मेरी bio पढ़ाया हुआ एक बच्चा तो doctor बना. There are many doctors, but today one of my doctor's student is Umar Mushir. The specialization he is a neuropsychiatrist, and also he worked in many organizations. He has done his MBBS honors, the MD in neuropsychiatry. He is a member of American Psychiatric Association, member of European Society for the Sexual Medicine Italy, and member of International Headache Society UK. Being a neuropsychiatrist, he is also dealing with the problem related to sexual and de-addiction specialist. And at present, he is a senior consultant, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Apollo Medics Super Speciality Hospital in Lucknow. So we are proud of you, Umar, to have you today as a guest speaker. अभी तक तो मैम बोला Thank you करती very थी, much, आज ma'am. तुमको मौका दे रहे बोलने का. Thank you, ma'am. And our second guest is speaker is Dr. Akansha Srivastava. She is a daughter of my friend. She did her schooling from Loreto Convent. She has done her PhD in psychology. Also, she worked with the WHO projects related to the organizing and holding sessions on counseling skills. She has even worked in US overseas as a program director for after school program at Boston. So वहाँ after school भी चलते हैं, उनके लिए भी programs होते हैं, for which she was doing her job very well. At present, she is working as a counselor, psychologist in Delhi Public School, Lucknow. जैसा कि हमने study किया है, and I have found people are suffering from this ailment. More than 77% of Indian population is having this problem, and some or the other type. For example, they are struggling with the stresses and anxiety. As the senior citizens or the lonely people are suffering from this depression problems or the stresses. Even nowadays, young children of the younger age, say 10 to 18 years, Omar Mushir, to kindly take up and please give us suggestions how to deal with the stresses and anxiety. Well, thank you very much, ma'am. Thank you very much, ma'am, for bringing me here on this forum to discuss something about one of the most important topics, the burning topics of our society, the mental health, Yes. probably which is just being seen as a tip of the iceberg, because many people don't see that how much of it remains submerged
the minds of people, and especially the sufferers and also the family members along with that. According to WHO, we know that it is very important that Hmm. the what's exactly the physical health. It is Hmm. basically the physical health means a complete state of physical, social, and mental well-being, and Hmm. not merely the disease of any, not merely the absence of any disease or infirmity, Hmm. Hmm. but see, there is a mental word associated with that. So mental health is basically that when you feel that you are, you can realize your own potential, you can cope with the day-to-day pressures of Hmm. life, you can Hmm. work productively for yourself and your family, Hmm. and you can bear the fruits of your productive work. And Hmm. when you are able to do all these things in a sound mind, that means that you are mentally sound. बिल्कुल So सही बात। we know that mental health इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया में धीरे धीरे ये एक महामारी की तरह फैलती जा रही है, बिल्कुल। मेंटल हेल्थ और सबसे इलनेसेस। बड़ी प्रॉब्लम अभी उमर ये भी है, सॉरी टू इसमें इंटरप्ट यू, कि बिकॉज पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, दैट्स द एग्जैक्टली आइडिया। वो कहते हैं नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साइकेट्रिस्ट के पास जाने का मतलब क्या मैं पागल हूँ, मेंटल हूँ? एग्जैक्टली तो दे डोंट वांट टू गो उसको एक एंड टैबू की तरह टेक मैम ये लोग टैबू की लेते तरह। हैं, हाँ यस, टैबू की तरह वो लेते गलत हैं। है, वो गलत है। एग्जैक्टली कि छुप छुपा के आते हैं दिखाने के जी जी। लिए कि किसी को पता ना चल जाए कि मुझे ऐसे है। और हम्म। करीब करीब 20 से 25% जो दुनिया की आबादी है वो मेंटल इलनेसेस से पीड़ित है बिल्कुल सही कह उसमें। रहे हैं। और जैसे हम लोग देखते हैं कि रोज कोई ना कोई सुसाइड्स की न्यूज हम लोग सुनते हैं, हम्म। चाहे वो स्टूडेंट्स में इट्स हो, रियली चाहे प्रिवेलिंग अ वो लॉट, सुसाइडल केसेस आर एग्जैक्टली प्रिवेलिंग अ हाँ, तो लॉट। जो भी सुसाइडल केसेस हैं दे आर नॉट मेंटली साउंड, कुछ ना हम्म। कुछ उनको प्रॉब्लम है। हम्म। स्पेशली क्योंकि जो मेंटली साउंड व्यक्ति होगा वो कभी भी अपनी जान नहीं लेगा। बिल्कुल सही कह ऑब्वियसली रहे हैं। कहीं ना कुछ तो ऐसा डिसऑर्डर है जो निकल के बाहर नहीं आ रहा है। हम्म। आइदर दे आर अनएबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, या वो बता नहीं सकते, या कोई ना कोई ऐसी चीज से पीड़ित हैं, तो कहीं ना कहीं उनको मेंटल इलनेस तो इसमें है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए और एक उसके लिए इन सब चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर जो है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है कि बेसिकली स्ट्रेस तब डेवलप करता है कि जब हमारे ऊपर एक्सेसिव प्रेशर है, हाँ हमारे ऊपर डिमांड्स हैं, बट हमारे पास उसके रिसोर्सेस की कमी है। हम्म। उसमें हम उन डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, रिसोर्सेस की कमी की वजह से ऐसी कंडीशन में व्यक्ति जो है वो स्ट्रेस में आता है। तो बेसिकली जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो हम क्या फील करते हैं? हमें टेंशन होती है, हमको थकान फील होती है, हम डरे सहमे से रहते हैं, डिप्रेस सा फील करते हैं, एनजाइटी हमारी बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो बेसिकली ओवरवर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम लोग जिसको नजरअंदाज करके चलते हैं। कई बार हम्म। हम लोग को ये लगता है कि हम अगर अच्छे से ज्यादा समय दे रहे हैं अपने काम को लेकर के, हम एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे हैं, तो हम हम्म। बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। हम्म। बट ये चीज जो मैं कहता हूँ कि ये हमको बर्नआउट बहुत जल्दी करेगी, ये चीज। हम्म। इसलिए एक वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ओवरवर्क नहीं रहना है। इसी तरह बहुत से लोग जो अंडरवर्क्ड हैं, मतलब दे आर केपेबल ऑफ डूइंग सम गुड वर्क, बट स्टिल दे आर नॉट बीइंग placed, or they are not in a specific position where they can come out with their full capabilities. तो हम्म। अंडरवर्क भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीजन होता है। अनसर्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं, कि आपके जॉब्स कैसे हैं, आपके जॉब्स रोज चेंज तो नहीं हो एक रहे तो हैं प्राइवेट आपका। जॉब में सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटीज हैं, और एग्जैक्टली आजकल मैम, प्राइवेट प्राइवेट जॉब्स जॉब ही जैसे हम लोग अवेलेबल देख रहे हैं हैं, टू वर्क। कॉर्पोरेट जॉब्स जो हैं या स्पेशली, कॉर्पोरेट स्पेशली कॉर्पोरेट ओवर जॉब्स आर टाइम। हाई डिमांडिंग जॉब्स। यस यस। एग्जैक्टली तो कॉर्पोरेट जॉब्स जो हाई डिमांडिंग जॉब्स हैं वहां पे इस तरह की अनसर्टेनिटीज और इस तरह की चीजें बहुत रहती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे स्लाइड में आप लोग देखेंगे चॉइसेस, कि हम्म। हमारे पास यहाँ पे चार हाजमोला है, बट इट इज अप टू वी हम्म। माई सेल्फ कि हम इसमें से कौन सी कौन सा बॉटल चूज परचेज करें। करें? एग्जैक्टली तो हाँ। हमको क्या ऐसे अपने लाइफ में चॉइसेस हैं, चूज करते हैं कि हम्म। क्या कोई ऐसी चीज हम चूज कर रहे हैं जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एक डॉक्टर हूं तो मैंने अपने लिए इस प्रोफेशन को चूज किया है। अब हम्म। मैं एक डॉक्टर होकर के अगर चाहूँ कि मैं नाइट ड्यूटीज नहीं करूं, मैं हम्म। इमरजेंसी ऑड आवर्स में अपने पेशेंट्स को हॉस्पिटल जाके अटेंड नहीं करूं, तो हम्म। दैट इज रॉन्ग ऑन माय पार्ट। और उसके लिए अगर मुझे पिनलाइज किया जाएगा तो आई विल फील स्ट्रेस्ड, बिल्कुल राइट। हाँ, एक एक बिल्कुल। एक आर्मी में एक व्यक्ति जाता है और वो ये कहता है कि नहीं मैं बॉर्डर पे ड्यूटी नहीं करूंगा, आई ओनली वांट ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड तो ड्यूटी तो ऑब्वियसली इट्स नॉट तो नहीं पॉसिबल, पॉसिबल है। तो या तो फिर आर्मी में एग्जैक्टली मत तो इट जाओ। इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ। हम लोग क्या चूज कर रहे हैं हम्म। उसमें। एक एग्जाम्पल के तौर पे राइट। जब हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो हम सबको मालूम होता है कि हमारे बच्चों का एक लेवल पे आकर के क्या स्टैंडर्ड है। हम्म। अब अगर
स्कूल या एक क्लास के सब बच्चे आईएएस का एग्जाम क्रैक कर लें, बिल्कुल ऑब्वियसली दैट इज नॉट पॉसिबल, ट्रू। बिकॉज एवरी चाइल्ड हैज इट्स ओन पोटेंशियल। अब उसकी वजह से अगर हम तनाव लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो दिस इज माई रॉन्ग चॉइसेस। बिल्कुल ये बिल्कुल। ऑब्वियसली जितने हम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, जितना हाई लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा हमें स्ट्रेस होगा। हम्म मैं बताना चाहूँगा कि स्ट्रेस में बेसिकली हमारी बॉडी में क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं। हम्म। इसमें जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं तो हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं, हाँ स्पेशली फाइट एंड फ्लाइट हॉर्मोन्स हैं, हाँ, उनका सिक्रीशन एड्रेनालिन होता है। एड्रेनालिन। उनका एग्जैक्टली हाँ, तो एड्रेनालिन इज अ गुड एंड एज वेल एज इट इज अ बैड बैड, हार्मोन। और सिर्फ एक्सेस इज बैड। एड्रेनालिन की बात नहीं होगी, यहाँ पे बात होगी साथ में कॉर्टिसोल्स की, जो स्टेरॉइड्स हैं, यस जो एंडोजेनस स्टेरॉइड्स होते हैं। हाँ हाँ। ऑब्वियसली जब बार बार सिक्रीट होते हैं, आप स्ट्रेस में आते हैं, आप टेंशन लेते हैं, तो वो बार बार आपका हार्ट रेट बढ़ाते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, आपका बीपी एलिवेट करते हैं। तो हम्म। लॉन्ग टर्म में जा करके ये आपको फिजिकल डैमेज भी करते हैं, हम्म सिर्फ मेंटल डैमेज नहीं हो रहा है। इसमें हम हम्म लोग देखते हैं कि हमारा स्लीप पैटर्न में चेंजेस आने लगते हैं, हम हम्म फटीग फील करने लगते हैं, हम्म। सेक्सुअल ड्राइव हमारी बर्न आउट हो जाते हैं एब्रेट हो जल्दी। जाती है, हाँ। रेगुलर हेडेक्स होने लगते हैं शाम को। स्पेशली लोग कहते हैं कि मैं शाम को जब काम से घर आता हूं तो मेरे सिर में दर्द होती है, हम्म। ठीक है, बॉडी पेन्स होते हैं। अपनी बार बार स्टेरॉयड एंड एड्रेनलिन रश की वजह से हमारी लोकल इम्यूनिटी डाउन होती है। हम्म। इसके वजह से हम लोग प्रोन हो जाते हैं कि छोटे मोटे इन्फेक्शंस हमको बार बार परेशान करते रहें। ओके, दैट्स अ रीजन। ओके यस ओके। दैट्स अ रीजन एग्जैक्टली। कि जो हाँ एनर्जी बिकॉज स्टोर्ड है वो सारी बर्न आउट हो रही है, सो वो यू सारी फील बर्नआउट वीक हो और लो। रही है, इन्फेक्शन के लिए हम प्रोन हो रहे हैं। हाँ और हाँ। ऑब्वियसली जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो सबसे पहले जो अफेक्ट होता है वो हमारा डाइजेशन एंड हम्म। हमारा यूरिनरी सिस्टम। देखिए जब बिल्कुल हमारा रिजल्ट आने वाला होता है तो पेट में कैसी फीलिंग आती है। एग्जैक्टली। क्रैम्प्स एग्जैक्टली पड़ तो ये जाते हैं, इसलिए क्रैम्प्स पड़ बिकॉज जाते आवर हैं। ब्रेन इज डायरेक्टली हम्म कनेक्टेड विद दीज थिंग्स। हम्म। तो वो कहीं ना कहीं उनको अफेक्ट करता ही करता है रात हम्म में। और जो मेंटल सिम्टम्स आते हैं कि जैसे मेमोरी लैप्स होना, हम्म अटेंशन कंसंट्रेशन पूरा ना दे पाना, डिप्रेसिव सिम्टम्स आना। डिप्रेशन की अगर हम लोग बात करें शॉर्ट में, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि डिप्रेशन हम तब कहते हैं जब किसी व्यक्ति का मन उदास रहे, हम्म उसको चीजों में इंटरेस्ट अच्छे से ना आए जो वो हम्म पहले एंजॉय हम्म करता था, हम्म थकान ज्यादा महसूस हो, हम्म नेगेटिव आइडियाज आए, हम्म। गिल्ट के आइडियाज आए, पेसिमिस्टिक व्यूज अबाउट द फ्यूचर हो जाएं, एग्जैक्टली। अपने आप को या किसी और को नुकसान पहुंचाने के विचार आए, भूख न लगे, नींद ना आए। और बेसिकली ये जो सिम्टम्स हैं ये कम से कम एटलीस्ट 2 हफ्ते के होने चाहिए। हम्म अगर 2 हफ्ते से कम है तो हम हम्म। इनको कह सकते हैं अनटिल अगर ये बहुत ज्यादा सीवियर हैं तो हम ओके इनको डिप्रेशन लेबल नहीं करेंगे। फॉर ओके। एग्जाम्पल आज मैं स्कूल जाता हूँ, मैंने अपना वर्क नहीं किया और मेरी टीचर ने मुझे डांटा हम्म सबके सामने। हम्म ऑब्वियसली मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा हम्म फ्रेंड पूछेगा क्या हुआ, मैं कहूंगा यार बड़ा डिप्रेस फील कर रहा हूँ, बट दैट डजंट मीन दैट आई एम सफरिंग विद डिप्रेशन। हम्म That is just a melancholy, that is just हम्म। a saddening of the mood. But when this persists for at least a period of 2 weeks or more, then देन we इट label इज it as देन इट depression. इज सीरियस समथिंग। Exactly. ऐसे ही एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं और ये जिसमें प्रॉब्लम उलझन तो होना। उम्र किसी भी एज में भी हो सकती, नॉट ओनली दैट वर्किंग पीपल, इवन द मैम रिटायर्ड पीपल कैन ऑल्सो डेवलप। आई हैव सीन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 4 5 हाँ, कमिंग अब टू मी बताइए इतने छोटे बच्चों with में anxiety एंजाइटी और symptoms. स्ट्रेसेस आ रहे हैं। Exactly, ma'am. And हम्म something that basically what we have seen that over a period of years, हम्म many things have the environment of the schools has also changed. हम्म। उसमें जो पहले इतनी बुलिंग वगैरह नहीं होती थी वो अब बहुत बढ़ गई है जी, स्कूल में। तो वही उसकी ना, वजह से पीयर भी पीयर बहुत से ग्रुप इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू सर्टेन एग्जैक्टली एक्सटेंट। peer group is very responsible, especially in students of class 10th, class 11th, class 12th. ट्वेल्थ। We have seen that एंड many आजकल तो एक चीज students. और भी ऐड हो गया उमर, सोशल मीडिया, वर्चुअल वर्ल्ड, Yes, ma'am. दैट इज Yes, I was अनदर coming to बिग that only. कॉज ऑफ द Exactly. स्ट्रेसेस। Yes, ma'am. Say screen addiction is a very हम्म। big menace ये for our हाँ, generation, दैट young इज। generation, हाँ, and basically we are responsible for it. हम लोग अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ाते हैं, बच्चा हाथ में फोन लेके पैदा नहीं होता बिल्कुल बच्चा। सही कह रहे हो, बिल्कुल हाँ, सही। वी वांट आर लिबर्टी, हाँ, वी वांट टू कि गेट हम रिड ऑफ उसमें योर आराम से रहें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ। बच्चा हमें डिस्टर्ब ना करे। हम उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं ये नहीं जानते हुए कि हमने उसके हाथ में कितनी बड़ी खराब चीज पकड़ाई है। एग्जैक्टली। और मैम स्टडीज में ये देखा गया है, जो फंक्शनल ब्रेन स्टडीज हुई हैं,
कि ब्रेन के वो ही पार्ट्स उसमें मेजरली काम करते हैं और हम्म। मेजरली एक्टिवेट होते हैं जब कोई स्क्रीन देखता है, स्मार्टफोन यूज करता है, जो किसी और नशे में होते हों, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे लाइक दैट इज व्हाई इट इज ओपियम, कॉल्ड लाइक एडिक्शन। कैनबिस। तो एग्जैक्टली ये चीजें देखी गई हैं, तो इससे ये पता चलता है दैट इज वाई इसको एक एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन वर्ड यूज किया गया है यहाँ एंड पे। इसकी वजह से कि बच्चे इतने इनटॉलरेंट हो गए हैं, इतने इरिटेबल हो गए हैं, स्टबर्न हो गए कि दे डोंट लिसन टू द पेरेंट्स। एग्जैक्टली, दैट इज If वेरी you इंपॉर्टेंट। take away the that instrument from their hands, then they will become the biggest enemy. You will become the biggest enemy of them. ये बहुत गलत हो। एग्जैक्टली, ये बहुत गलत हुआ है। हाँ और मैम कहीं ना कहीं हम ही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जैसे बिल्कुल मैंने कहा। बिल्कुल। हाँ, भाई ये कि स्क्रीन क्योंकि टाइम अगर एक हम फिक्स लोग, होना चाहिए कि भाई 24 आवर्स में हम आपको सिर्फ 1 घंटे के लिए देंगे जो भी करना मैम है। जो एक अकॉर्डिंग टू स्टडीज एक जो परमिसिबल स्क्रीन टाइम है, हम्म। मेरे ख्याल से डॉक्टर आकांक्षा इस पे ज्यादा अच्छा बता पाएंगी बिल्कुल। बिकॉज शी इज डीलिंग विद किड्स ऑफ स्कूल हम्म। उसमें। तो परमिसिबल जो स्क्रीन टाइम है वो 2 आवर्स या उससे कम है। बिल्कुल बिल्कुल। और Absolutely. या। दैट टू फ्रेगमेंटेड, ये नहीं कि एक हम्म। साथ हम्म। लगातार बच्चा बैठ के 2 घंटे 3 घंटे टीवी देख रहा है। और स्क्रीन टाइम इंक्लूड्स एवरीथिंग, दैट इज अ एवरीथिंग। टेलीविजन, दैट इंक्लूड्स योर स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स, टैब्स, ईच या एंड टैब एवरीथिंग। और वॉट एवर, या। एग्जैक्टली, And ये it चीज। harms the eyesight also, no? That radiations are bad for the skin. एग्जैक्टली, हाँ, तो Not ये only लोग नहीं समझ mental, रहे it हैं। is bad for the health. And that is basically going to be a big problem in the future because Future. as we see that अभी फिर स्कूल में छुट्टी हो गई, सारे स्कूल्स फिर ऑनलाइन स्टडी पे आ हाँ गए बिल्कुल, उसमें। अभी तो मजबूरी है, तो देना पड़ रहा है टैब बच्चों को। एग्जैक्टली exactly, तो हाँ। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस, दो उनका जो कुछ भी थोड़ी दूरी थी वो और कम हो गई हम्म। स्क्रीन से। तो बिल्कुल सही। इसलिए ये प्रॉब्लम्स तो है मैम इसमें। हम्म। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करना है। हमको बेसिकली जानना है कि हमको किस चीज़ से स्ट्रेस होता है, किस चीज़ से हम स्ट्रेस को अपने कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपने थॉट्स को रिफ्रेम कर सकते हैं। जो हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वी शुड चैलेंज इट, बिल्कुल। कि एक दैट इज नेगेटिव द थॉट रूट आया तो कॉज, उसको चेंज करके। नेगेटिविटी। यस, तो हम्म। नेगेटिव थॉट आता है, बेसिकली वी डोंट हैव टू एक्ट ऑन द नेगेटिव थॉट, हम्म। वी हैव टू चेंज इट विद द पॉजिटिव वन। हम्म। हाँ, बिल्कुल एंड बिल्कुल। बेसिकली वी हैव टू एंड री एनालाइज, वी एंड द हैव टू बेस्ट थिंग सी। इज कि एनालाइज करें, रीथिंक करें कि हम कहाँ गलत है, अपनी गलती भी तो माने ना। पीपल डोंट अग्री एग्जैक्टली, विद एनालिसिस इज देयर वेरी मिस्टेक्स। इंपॉर्टेंट। हाँ। हाँ, हाँ। अगर हम बहुत ज्यादा एकदम अडिग रहेंगे कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ दैट इज राइट, या मैं जो सोच रहा हूँ वही एग्जैक्टली। सही है, सो बेसिकली दैट इज नॉट हाँ। गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, इन फैक्ट हम्म। इट्स गोइंग टू हम्म। मेक इट वर्स, हम्म। ये चीज। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि वी शुड एनालाइज, वी शुड स्टेप आउटसाइड आवर कंफर्ट जोन, एंड बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज अ नेगेटिव थॉट विद अ पॉजिटिव वन। और सबसे बड़ी चीज उमर, अब व्हाट आई एम सीइंग कि नाउ डेज पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इनटू वर्चुअल वर्ल्ड दैन मीटिंग पीपल फिजिकली, चाहे रिलेटिव्स हों, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे फ्रेंड्स हों। दे डोंट वांट टू गो आउट ऑफ द हाउस। दे वांट टू बी रिमेन इन देयर यस, कंफर्ट जोन बिकॉज दे आर हाँ, तो एडिक्टेड टू इट। दिस इज अ बिग चेंज दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट फ्यू इयर्स। स्पेशली हम तो कहेंगे ये कोविड के बाद से कुछ ज्यादा ही हो गया इंडोर, हाँ मैम, एग्जैक्टली, क्योंकि जब है ना। से ये स्मार्टफोन्स स्ट्रेस का एंड यूज ये हुआ है। एंजाइटी लेवल कोविड के बाद ज्यादा बढ़ा है। 50 कहते हैं ये डबल हो गया है। इट वाज नॉट दैट मच बिफोर 2018 एंड नाउ इट हैज राइट, राइट, राइट। डबल्ड इटसेल्फ। आकांक्षा, तो यू इसके कैन लिए भी आल्सो मैम शेयर बहुत सम। important। हाँ या। तो आकांक्षा, आप कुछ बताना चाहेंगी इसके बारे हाँ, में, यू व्हाट यू कैन आर डूइंग हाईलाइट इन समथिंग। स्कूल किड्स? लेट्स गो Gee, साइमल्टेनियस। actually, I was very intently listening to sir's views, and I think very insightful views, sir. I totally agree with all the points, and हाँ बिल्कुल behavior patterns में change आ गया है, complete habits में change आ गया है। आप कह सकते हैं कि total transformation है kids के अंदर, उनकी habits को लेके। उनका sleep cycle पूरी तरह से disturbed है। Today's incident only, I had a child in my class again, looking very lethargic right in the morning. I mean, बताइए। morning is a time when we feel that they should be full of फ्रेश energy, and फ्रेश। हाँ। nowadays, so the school का timing भी change हो गया है, so it is quite, around 10. So, I mean, at 10 o'clock, we expect a child to, have
Full had his energy and all. breakfast, full of energy. But then I saw drowsiness in them. And what I came to know, because I had this conversation with them, and I came to know that it is because of, the disturbed sleep cycle, and because of the excessive use of mobiles, because they just don't know how to stop that particular. And as sir said, it's becoming a growing problem of addiction, that the children derive all the enjoyment out of it, all the happiness that we actually used to derive by interacting with the real people. They seem to have the same kind of excitement and happiness with interacting online. So I mean, our entire well-being is threatened, I would feel like बिल्कुल that. बिल्कुल, यू आर um, वेरी करेक्ट। यही हो रहा है कि दे हैव सो मेनी फ्रेंड्स, वर्चुअल फ्रेंड्स, बट इन reality they have no friends. Even they don't know their neighbors properly because And of the children virtual. don't want to Absolutely. step out of the home and play in the playgrounds. The हाँ, playgrounds are empty, right? And they बिल्कुल। The are playing playgrounds are absolutely empty. multiplayer online games like PUBG and all हाँ, these वो things. उसमें तो दे आर एक्सपर्ट है, उसके लिए तो उनका पूरी टीम बनी हुई है वर्ल्ड That ओवर। is why it is very important that one thing, if your child is even using a sort of say any smartphone or some games, it is very important to see that your child is not playing multiplayer games. See, आप कैंडी क्रश एक ओके, बार इट्स अ गुड खेलिएगा, गुड 10 बार पॉइंट। पार नहीं कर हाँ पाइएगा, you हाँ। will Good get point. bored and you will close it, right? But हम्म these multiplayer games, when you play it with different people and with your friends and circle and all, so what हम्म happens that gives you an adrenaline rush. You are just trying to live a life in it. आपको लग रहा है कि ये मेरी जीवन का हिस्सा है, मैं उन लोगों से कैसे बातचीत कर रहा हूँ, कैसे खेल हम्म रहा हूँ. So हम्म। basically, this is very, very harmful for the kids. Absolutely, sir. And I think very important कि ये जो multiplayer वाला है, ये generally it's a new thing, I feel. But it's becoming increasingly popular with the children. वेरी वेरी ये मतलब जो आपने बताया कि कई सारे प्लेयर्स वाला, दिस हैज बिकम एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। अब वो उनको उसमें ही, मतलब दे हैव अ शेड्यूल टाइम, आई बिलीव, एंड दे कम ऑनलाइन, एंड दिस इज हाउ दे डू इट। ये, एंड प्लस उनको शायद इंसेंटिव्स भी मिल रहे हैं इन गेम्स जो ओरिजिनेट करते हैं मेकर्स, दे आर गिविंग देम सम इंसेंटिव्स आल्सो। सो वो उनका एक अट्रैक्शन भी है उसमें। सो बिल्कुल। Exactly. हाँ, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन की वाई आर देयर सो एडिक्टेड टू। मैम वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी अगर यूट्यूब लोगों को पैसे नहीं देता तो लोग इतने रील्स नहीं बनाते. बिल्कुल सही बात, हाँ ये भी है। एग्जैक्टली. हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ इट इज जस्ट नॉट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, इट्स हम्म। सोर्स ऑफ इनकम फॉर मेनी पीपल. सो अब ये बताइए एब्सोल्युटली, आप। इंस्टाग्राम, यूट्यूब। सो मैम इट इज वेरी या। इंपॉर्टेंट कि हम लोग को थोड़ा सा अपना बिहेवियर को कैसे चेंज करें, एज आई वाज टेलिंग यू. हम्म सो वी शुड गेट ऑर्गेनाइज्ड. हम्म यानी वी शुड नो दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, मतलब व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट मस्ट बी डन. ये दो हम्म। चीजें हैं जिसमें हमको एक लाइन खींचनी पड़ेगी. सो बिल्कुल। बी ऑर्गेनाइज, following a timetable, following a schedule, it is very important for us. Time management, as I told you, हम्म drop unwanted or unimportant activities, plan your day, set achievable goals, that is very important. हम लोग ऐसी चीज क्यों बोलें मतलब ऑब्वियसली दैट इज अनअचीवेबल, क्योंकि उसके लिए फिर वी फील मोर प्रेशराइज्ड. So that is very important. Ventilation, this thing is very important, that is missing with many people. Obviously, we all of us have a friend circle, a family circle. You have got your friends, your family members whom you can ventilate things out. It is very हम्म। important. लोग कहते हैं ना बात करिए, उसमें लोग बात नहीं करते वही वेंट फिर. आउट नहीं कर रहे ना, वेंट आउट नहीं कर रहे हैं, अपनी चीजों को शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने को परफेक्ट समझ रहे हैं, या शेम फील करते हैं शेयर करने में कि अरे वो हमको ऐसा ना सोचे कि हमें कोई प्रॉब्लम है। सो ये चीज बहुत गलत है। दे शुड कम आउट एंड डिस्कस देयर इश्यूज विद समवन whom दे हैव विश्वास है, या कह लीजिए उनसे वो फ्री हैं, तो जरूर वेंट आउट तो करना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर आकांक्षा, क्या स्कूल में बच्चे आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर हाँ, के, डू या दे डू दे ओपन शेयर अप और नॉट, हाँ ये भी है। देखिए, आई फील चिल्ड्रन ऑलवेज वांट सेफ्टी, सो दे फील कि जहां उनकी बात सुनी जाए और जहां उनको जज ना किया जाए, वो उस एटमोसफेयर को तलाशते हैं। तो अगर उनको एटमोसफियर, कई सारे ब्लेस्ड बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स वो एटमोसफियर दे पा रहे हैं, एंड आई फील इट इज माय, मतलब आई फील इट्स अ प्लीडिंग टू अ पेरेंट कि आप वो स्पेस उन्हें प्रोवाइड करें। क्योंकि अगर वो प्रोवाइड होता है वो स्पेस, एंड वी कैन सी वेरी वेल सिक्योर चिल्ड्रन, हैप्पी चिल्ड्रन ऑल्सो, जहाँ पे उनको वो स्पेस मिल रहा है, जहाँ वो अपनी बात कह पा रहे हैं।
पर अनफॉर्चुनेटली ऑन द अदर साइड देयर आर सम चिल्ड्रन जो उस सेफ स्पेस को नहीं पाते हैं. तो इन दैट केस यस, द स्कूल सिस्टम हैज, एंड नाउ सीबीएसई डज रिकमेंड अ काउंसलर इन एवरी स्कूल फॉर दैट रीजन, कि जहाँ पे और वो फ्री फील करें कि हाँ हम जहाँ, कोई तो एक जगह हो जहाँ हम बता सकें अपनी बात. और टीचर्स एंड द काउंसलर आई मीन इज वन पर्सन, बट इफ यू आर अ पर्सन हु इज सपोर्टिव, आई फील एनीबडी कैन वर्क इन दैट सेम कैपेसिटी एज अ काउंसलर. तो बिल्कुल वो बिल्कुल. हाँ एंड आई थिंक कहने की मदर मतलब मदर और द ग्रैंड पेरेंट्स आर द बेस्ट काउंसलर बिकॉज दे लिसन टू देम. बिल्कुल अगर वो टाइम नहीं बिल्कुल. देंगे तब तो बट नेचुरल है कि वो बच्चा फिर डिप्रेस होगा या स्ट्रेस्ड होगा, एंजाइटी लेवल उसका बढ़ेगा कि वो अपनी चीज शेयर नहीं कर पा रहा है. तो जी, और हम सबकी Yes, बच्चे ma'am. अंदर को वो नीड टाइम होती देना, है कि किसी बच्चों को हम को भी बोलें. हम सोचते हैं बड़ों को भी, चाहे हमारे एल्डर्स हो, एंसेस्टर्स हो, आई मीन पेरेंट्स हो, जो भी हो, या बच्चे हैं, उनको थोड़ा टाइम तो देना चाहिए टू सिट विद देम एंड डिस्कस समथिंग. लेट देम फील फ्री टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स. वो भी बहुत जरूरी है. ये Exactly. बिल्कुल शेयर करें, और मतलब जब वो शेयर करें तो हम एक्चुअली लिसन करें, ना कि हम उन्हें हम्म, हाँ बीच में हाँ कट इन करके या हम हाँ. या अपना हम कहें, नहीं उस आज मोड नहीं में आ कल जाए. बात करेंगे, या उनको झटक देते नहीं, जैसे कि चलो छोड़ो अभी नहीं बात करेंगे, तो बच्चा उसमें डिसहार्टन हो जाता है, डिस्करेज भी हो जी जाता है. तो वो ये भी हमारी भी एब्सोल्युटली. पे गलतियां हैं उसमें. वी शुड ऑलवेज. जी, आई थिंक देयर इज अ कमेंट आल्सो रिलेटेड टू दैट राइट नाउ कि a child is written about, as somebody is written about, that they feel judged. वो कि इसीलिए ना कमेंट Yes, आपको फिर बाद वही में वो बात है लोग ना, मजाक मदर इज बनाते द हैं. बेस्ट पर्सन, और से ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे आप शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, या टीचर या काउंसलर. बिल्कुल. मैम इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बेसिकली पब्लिक को, मतलब चाहे वो अडल्ट हों बच्चे हों, लोगों को समझना चाहिए कि मेंटल इलनेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे अभी आपने इसमें कमेंट आया हुआ है कि एब्सोल्युटली. शेयर करें तो लोग मजाक बनाते हैं. लोग, हाँ, हम्म बेसिकली बहुत से मेरे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, दे से द सेम थिंग. और ये फैक्ट है कि जो झेलता है वो ही समझता है ये चीज़. बिल्कुल सही बात है. हाँ, अब अगर कोई कोई लो फील कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके आसपास के लोग नहीं फील कर रहे हैं ना, तो दे डोंट अंडरस्टैंड इट. और ये एक ऐसी चीज है जो सबको तो नहीं हो रही है. कोई पेट दर्द तो जीवन में सबको कभी ना कभी हुआ है, बुखार तो सबको कभी ना कभी आया है. तो इट बिल्कुल. इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द पर्सन हु इज हैविंग सच प्रॉब्लम्स. इट इज इंपॉर्टेंट टू गाइड दैट पर्सन कि उसको सही जगह पहुंचाया जाए उसको, और दूसरी चीज रादर बिल्कुल देन उसका मजाक उड़ाना, अभी रादर क्या है देन ना उसको कि शन कर देना. पेरेंट्स भी बच्चों के साथ खेलते नहीं है, टाइम ही नहीं स्पेंड कर रहे हैं. दे कैन एग्जैक्टली. एजुकेट, दे कैन फाइनेंस और एजुकेशन, एक बट चीज दे बहुत कांट इंपॉर्टेंट एजुकेट है देम. कि यू शुड ऑलवेज नो कि आपका बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है. हाँ ये चीज, हाँ, वो बिल्कुल. किस तरह से है. जब भी हम लोग उसमें जाते चेक हैं होना पेरेंट चाहिए, टीचर चेक मीटिंग होना में चाहिए. जाते हैं, तो आस्क द टीचर अबाउट योर चाइल्ड. वो सिर्फ, ज्यादातर स्कूल्स में मैं अभी ये देखता हूँ कि ये एक मोनोलॉग की तरह होता है, इट्स नॉट अ डायलॉग. हम्म ये चीज जी. हमको हम्म. मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द कंपनी ऑफ माय चाइल्ड, विद व्हाट टाइप ऑफ चिल्ड्रन इज ही सिटिंग, ही इज प्लेइंग. और क्योंकि मैम अभी स्कूल्स में एडिक्शंस इज अ बिग प्रॉब्लम. बिल्कुल एडिक्शन, बिल्कुल. बिल्कुल especially in बिल्कुल. in ऑल सॉर्ट ऑफ students of class एडिक्शंस. हाँ 8 and above. हाँ हाँ. हाँ, in any big school you name it, and that is आई prevalent. एग्री, आई टोटली अग्री विद यू. And it's not only एब्सोल्युटली. limited to pan masala and cigarette नहीं नहीं smoking. नहीं, It has ड्रिंकिंग gone एंड to other एवरी. levels. It हाँ, has gone to ड्रग्स एंड weed. ऑल It's gone, एवरीथिंग. या exactly. It's gone to drugs. या. It's gone to everything. हम्म. Basically, just on the lines of alcohol and tobacco is a thing of इसके the लिए तो past. देखिए बेस्ट तो तरीका, अभी व्हाट आई फील कि दे शुड बी गिवन एक्सेस ऑफ मनी. गिविंग देम, आई मीन वट एवर दे डिमांड, वी शुड नॉट, वी शुड लर्न टू से नो टू देम ऑल्सो. जरूरी नहीं कि हर चीज exactly. उनकी पूरी करनी Don't चाहिए. say yes when you want to say no. That is very यस. important. या वन शुड लर्न टू से नो टू द चिल्ड्रन. आप उसकी हर बात अगर डिमांड पूरी कर रहे हो तो फिर उसके पास क्या बच जाएगा एक्साइटमेंट टू लुक फॉरवर्ड इन फ्यूचर. वो काम कैसे करेगा, या आगे बढ़ने की उसकी चाह भी खत्म हो जाएगी. मेरे पास तो सब कुछ है, व्हाई शुड आई वर्क. Exactly. तो ये कुछ चीजें हैं, और हम लोग को भी ध्यान है. आई थिंक आकांक्षा कैन एक्सप्लेन बेटर. शी मस्ट बी डीलिंग विद सच सिचुएशंस इन द स्कूल. तो आपकी प्रॉब्लम छोटे बच्चों के साथ ज्यादा है आकांक्षा, की बड़े बच्चों के साथ है? आई मीन दे कम और द यंगर वंस. See, younger ones के साथ generally it is usually the teachers who are referring them, because sometimes दे फाइंड देम. हाँ it's हाँ. yeah, and they don't have the ways. Sometimes they don't know how to communicate what they want to say. So हम्म. perhaps the teacher identifies that, and they are more intuitive in that sense. हम्म. Sometimes some teachers also, and I feel, and this is a very big topic in our community as educationalists, that teachers are also counselors.
So if बिल्कुल we have an बिल्कुल understanding teacher in the classroom, sometimes they don't feel the need for a counselor. So it is that it is up to us, and we don't have to think that there is only one counselor to which the children, should be willing to go. We all should be there for the children. We all are, and that's what बिल्कुल we One our one I thing real is job agree. is. I very Our totally real agree job. with you. Unless until that one thing case is is very important out that of the hand. school should understand. Yes, Hmm. school Hmm. should understand that one teacher cannot be a counselor to 51 students. Yes. It is very difficult to manage 50 students in a class. एक बार टीचर डांट Absolutely. भले सकता है बट वो उनको समझा नहीं सकता 50 बच्चों को, बिल्कुल ठीक है? जी, तो इसके ऊपर भी स्कूल्स को वर्क करना चाहिए फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल. बिल्कुल बिल्कुल. देयर शुड बी अ Absolutely. टीचर स्टूडेंट रेशियो सो दैट द टीचर इज एबल टू, जैसे बाहर कंट्रीज में होता ही है एग्जैक्टली. अच्छा और बिल्कुल. देयर yeah. That is a big problem, sir, and I feel it's coming from, like, because I had the opportunity to work outside also, and that was an after school setting, and it's the ratio is very balanced. It's like, I would say one, there was two of us between a class, and there were like, I had only 15 children who I had to take care of. So I mean, this is drastically different from what we have here. So it is, and in the and teacher is also a human at the end of the day. They also, because if it's as you talked about the work overload, so that is also something which the school systems need to look into, that maybe the teacher needs that extra time to have a rapport with Uh, the children. Another thing, Umar and Akansha, I've seen that not only the urban children are suffering, people are suffering, even in the rural areas. 25% of rural population is suffering from anxiety, depression. उनका तो वजह समझ में आता है कि they are deprived of certain things, so they develop the anxiety or their depression. But क्यों वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है? So what are the reasons? So anyway, मैम I think our time is going to finish. I would like to thank you both for sharing your views and all, and those members who are wanting to take any kind of counseling or medication. Dr. Umar is there to help us, and Akansha is there to counsel us. So, thank you so much, all the viewers and members who have taken out time to listen to both uh, my student as well as my friend's daughter. और हम लोग फिर कभी एक सेशन और करेंगे इस पर अच्छे से, और श्योर मैम, क्योंकि श्योर. टाइम लिमिट यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हैं. एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन. गुड नाइट. टेक केयर. Thank you थैंक्स. very Thank much, you, ma'am, thank for you so having much, me sir. on this platform. It was a pleasure to be with all of you Thanks a people. lot, and thanks for sir also